Hey students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English and welcome to another class of CHSC Compulsory English and topic paragraph writing. I think this is only not for first year. This is not only for first year. It is for all. Especially it is in our first year book. प्रथम first year syllabus रे एटा अछि. किंतु पिले एटा खाली first year पिला मानक पई नुहे. एटा समस्तंक पई. एटा जो पिला माने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर करूचंती जो पिला एक्सटेंसिव राइटिंग जोटा सीटीबी राउची इवन इफ in SSC examination all the examination in maximum examination it is coming, so it is for all. एटा समस्तंग पई आउ स्पेशली if I'll tell I'm making this video for first year students. So let me start the chapter. Before starting the chapter, तमे जदि नुआ रे देखुचो बोले सब्सक्राइब कर दियो प्लीज चैनल टा और पाखे बेल बटन अछि ताको दबाई दियो जा फल तमे लेटेस्ट अपडेट सब पाई जीवो. ठीक अछि ताहले चलो वीडियो स्टार्ट करिबा. हां और गोटे कथा भूलिबो नै, डिस्क्रिप्शन रे आई हैव गिवन ऑल द लिंक रिलेटेड टू योर सेकंड ईयर and first year all the topic I have made. You can see going through the link. And one more thing, I'm thinking of a live class. प्रत्येक रविवार दिन मु लाइव क्लास करिबी. समय तुम ऊपर डिपेंड करुची. ओके सो रविवार दिन मु क्लास करिबी. रविवार दिन केते बेले से क्लास होबो सेटा तमे जस्ट गिव मी कमेंट. से समय रे हम स्टार्ट करिबा. एप्रोक्सीमेट टाइमिंग होची पिले 11 रु 12. यस 11 रु 12 समय रे तमर लाइव क्लास होबो प्रत्येक रविवार दिन. तुम माने देखिबो आ तुम डिमांड हिसाब रे हम टॉपिक सब नबा आ करिबा से क्लास सब. ठीक अछि. सो फ्रॉम नेक्स्ट Sunday see you in the live class. Okay, so let me start the topic today. Paragraph writing. So as I have already written paragraph writing, what is a paragraph? First of all we must know what is a paragraph. Paragraph कहले कोन रखले. So as per the Wren and Martin grammar book, that is for high school grammar book, it is clearly written there that a paragraph is a collection of related sentences. A paragraph is a collection of related sentences. गोटे प्रकार वाक्य को गोटे टॉपिक ऊपर dealing with a single topic. A paragraph is a collection of related sentence dealing with a single topic. गोटे टॉपिक को नहीं कि गोटे टॉपिक ऊपर सब वाक्य से समान टॉपिक को बेस कर जते बेले लिखुछु सेटा गोटे अनुच्छेद हो जाए. प्रबंध और पैराग्राफ. प्रबंध कहले एसे. प्रबंध और एसे भीतर डिफरेंस कोन रखिले. प्रबंध रे हमें वी लुक एट द एस्पेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए टॉपिक. गोटे टॉपिक रो डिफरेंट एस्पेक्ट को देखिताओ. किंतु पैराग्राफ रे कोन हो आ सेटा कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ हे थाए. एन एसे इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ, whereas a paragraph is a combination of sentence. वाक्य गुडी कर समाहार गोटे लिमिटेड टॉपिक ऊपर माने गोटे टॉपिक ऊपर सेटा होची पैराग्राफ. आउ तमरो अनेक गुडी माने 4-5 टी अनुच्छेद रो समाहार सेटा हिताय गुडे प्रबंध. ठीक अछि. तो टू राइट ए पैराग्राफ व्हाट डू यू नीड, व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स, को जिंसो को उपादानटा निहाती दरकार पैराग्राफ लिखिबा पाई. बर्तमान देखिबा. प्रथम जिंस हला यूनिटी, कोहेरेंस, टॉपिक, adequate development. These are the 4 necessary things to look at while writing a paragraph. कौन कौन? Unity, coherence, topic, sentence और adequate developments. These 4 are the most important things. I have written here. This is the part of adequate development. I'll discuss on all those things. Okay, so let me start with unity. What is unity? Unity खोले कौन रखिले. एककत्व. एककत्व. Unity सब सेंटेंस माने से टॉपिक टा गोटे सिंगल से पैराग्राफ टा गोटे सिंगल टॉपिक ऊपर थिबो. That means all the sentences must be interconnected. समस्त गुंथा गुंथी हे किरि थिबे. एटा हला यूनिटी तमरा.
ମୋର ହେଲା ସବୁ ସବୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ, ନହେଲେ ସେଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ହେଲା କୋହରେନ୍ସ। କ'ଣ ପିଲେ? କୋହରେନ୍ସ। କୋହରେନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? ଚରିତ୍ର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୁଣ, ଇଭେନ୍ ସେ ଗୁଣ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର, the character must be same, all the sentence must be on that particular character. You get it? So coherence is the trait. Trait means what? Quality, character. Trait means what? Coherence is nothing but it is the trait. Okay, it carry the thoughts of the paragraph from sentence to sentence. Coherence carry the thought of the paragraph. Paragraph ର ଭାବନା को गोटे sentence ରୁ अन्य sentence को carry करी थाए। गोटे sentence सहित अन्य sentence ର जो संपर्क थाए ताको coherence कुहाଯାଏ। It carry the thought from sentence to sentence. गोटे गोटे sentence जाउथले तार थॉट धीरे 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 पूर्ण हो जाए। जेमती 1 पर 2, 2 पर 3, 3 पर 4 एमती करी करी हम जाउथले सेट कौन हुए गोटे माने नंबर काउंटिंग टा पूरा हुए से बेले पैराग्राफ टा पूरा हबो केते बेले यदि ए प्रथम वाक्य सहित द्वितीय वाक्यर संपर्क रहे तेबे, नहले सेठी कोन हबो पैराग्राफ सरी कि आ गोटे नवा पैराग्राफ स्टार्ट हो। मन पैराग्राफ कहले अनुच्छेद गोटे पैराग्राफ। ठीक अछि। ओके, नेक्स्ट इज योर टॉपिक सेंटेंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस टा कोन रे बिले? टॉपिक सेंटेंस कहले यू नो से सेंटेंस टा होची तमर थेम ऑफ द टॉपिक, टॉपिक रो पूरा थेम। Okay, what refers to the theme of the paragraph? What that refers to the theme of the paragraph is okay. What the paragraph is about? Getting me? Idea or theme. Topic sentence is nothing but it is what the idea or theme the paragraph is going to deal with. Topic sentence is nothing but it is the idea or the theme about which the paragraph is written. जहाँ विषय लेखा जाइए सेटा होची टॉपिक सेंटेंस. You can say the heading also. Okay, so heading also. So yeah, one thing I have forgotten. No, okay. So first of all, you have to write what number 0 should be your heading. Heading रे पिले heading टा मु बोली जाइए heading heading. तो प्रथम रहा हेडिंग, हेडिंग पर आइला तुम बाकी जिनस पैराग्राफ लिखला पूर्व तार ना देदेवा, हेडलाइन टा हेडिंग देदेवा, कैपिटल लेटर लिखिदेवा, हेडिंग टा हेडलाइन टा नॉर्मली पैराग्राफ कैपिटल लेटर लगा कैपिटल लिखिदेला पर आम स्टार्ट करवा। यूनिटी बुझिले आम कोहेरेंस बुझिले। टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस? एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस, you know, it can be written in a different way, but on the first at the beginning, you can say at the beginning. Number 2 at the middle, at the middle. Number 3 at the end, at the end. Okay, so at the beginning, at the middle, at the end, you can write the topic sentence. तीन जगह में लिखी फॉरवर्ड at the beginning, at the end, at the middle. किंतु what is the best? First code of software भलो. If you will ask me, at the beginning, सर्वप्रथम the sentence must be attractive and it must be catchy. Yes, no, that should attract the attention of the reader. हाँ, प्रथम सेंटेंस टा हमर एंती हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन तम समस्त जानि छे। तो प्रथम सेंटेंस टा हमर एभली होबा कथा जे दैट विल ड्रैग द रीडर अटेंशन, रीडर्स अटेंशन, पढुथिबार लोकर मन खुश से जीवो। यस, टॉपिक इज अबाउट दैट, ये विषय टॉपिक टा लिखाई छे, बुझियला? ओके, नेक्स्ट थिंग, दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस, यस और नो? Then comes the turn of what? Okay, topic sentence is specially based on 3 questions. Topic sentence is specially based on 3 questions. First thing is, what is the paragraph about? What is the paragraph about? First question, paragraph कहा विषय लिखा जाए छे. Okay, what is the main point I want to make? Number 2, what is the main point I want to make? Number 2, this is what is the main point? को point ऊपर
लिखिबा पई चाहूसी प्रथम है व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट पैराग्राफ कहा विषय तापर है व्हाट इज द मेन पॉइंट आउ को मेन पॉइंट को नहीं कि मु लिखिबी बुझेलो दुई तीन नंबर है व्हाट डू आई वांट टू से नंबर तीन को है व्हाट डू आई वांट टू से व्हाट डू आई वांट टू से मु कौन मेसेज दवा पई चाहूची से पैराग्राफ माध्यम रे मन रहला मु पैराग्राफ माध्यम रे कौन मेसेज एटा होची तुम्हार कंप्लीट पैराग्राफ रिव्यू व्हाट इज द paragraph about first sentence in the middle you can what is the main points I want to make this is the middle part and third part what do I want to say what do I want to mu kon कहबा पई चाहू जी कोन within these three sentences you can complete the paragraph these are the three vital question while you are writing paragraph कोन तीनटा पॉइंट सब मन रखिबा what is the paragraph about paragraph टा को विषय लिखा होजी टॉपिक सेंटेंस गल तापर व्हाट इज द मेन पॉइंट्स आई वांट टू मेक मु मेन पॉइंट्स सब कोन लिखबी आई हैव जट डाउन द पॉइंट्स नाउ आई हैव टू से देन व्हाट डू आई हैव टू से तापर शेषटा हला मु कोन कहबा में चाहू छी एटा थला तमरो कोडा टॉपिक सेंटेंस आउ पैराग्राफ लिखिबा परे टिप्स तीनटा क्वेश्चन को वर्तमान पॉइंट्स टू पॉइंट एडुकेट डेवलपमेंट धीरे धीरे केमती डेवलप करियो पैराग्राफ कोन कोन जिंस दरकार व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स कोन कोन हम यूज करिवा पैराग्राफ खोला ठीक अछि गोटे गोटे करी मोले कहूची प्रथम जिंस है यूज एग्जांपल कोन यूज एग्जांपल उदाहरण से दबा उदाहरण माध्यम रे हमें टॉपिक को माने बढ़े परिवा को नंबर 2 साइड डाटा जदि कोन सी डाटाबेस पैराग्राफ लिखिबार अछि बोले हम सब डाटा पुट करिवो डाटा को नै कि सेंटेंस तैयारी करबा नंबर 3 कोटेशन अन्य कोन सी जगह रे पढितबा कोटेशन किबा उद्धृतांश हम व्यवहार करबा पैराग्राफ लिखला बेले स्टोरी माध्यम गोटे पैराग्राफ हम लिखि परबा स्टोरी वी कैन नरेट अ स्टोरी यूज स्टोरी कंपेयर एंड कंट्रास्ट तुलनात्मक अन्य जन सहित तुलना अन्य गोटे जिंस सहित तुलना अन्य कौन सी घटना सहित तुलना कंपेयर एंड कंट्रास्ट आउ द्वंद्व बाहर करके हम करि परबा तबरे हैला डिस्क्राइब द टॉपिक को खाली डिस्क्राइब करी एक्सपेंशन करी हम जीवा पैराग्राफ इज व्हाट टू एक्सपेंड द आईडिया नथिंग इज हियर यस वन सो व्हाट डिस्क्राइब द टॉपिक तबरे हैला कोन define the terms good terms को define करी हमें जदी terms को define करी गले भी गुड पैराग्राफ हमें लिखि परबा if we can define the terms then comes elaborate okay evaluate the cause and reason evaluate the cause and कारण सब को ओके cause and reason को हमें जदी करिबा cause and reason को जदी हमें evaluate करी मूल्यांकन करी जीवा हां काहे की हला की परि हला जदी एमती ताको करी जो सेटा भी पैराग्राफ हे परे then comes what analyze a topic गोटे टॉपिक को विश्लेषण करिबा तर्जमा करिबा तार ऊपर हैं सेटा भूल की भलो जदी भूल काहे की जदी भलो काहे की दिस कॉल्ड एनालाइज ठीक अछि तापर एला what examine the effect and consequence effect तार प्रभाव एवं फलाफल effect and consequence examine परीक्षा और निरीक्षा तार प्रभाव एवं फलाफल को परीक्षा निरीक्षा करी हम टॉपिक करि परिबा मु बाउची एति की हला पर आउ किछि नाही सो लुक एट दिस अगेन आई एम टेलिंग यूज एग्जांपल साइट डाटा यूज कोटेशन यूज स्टोरी कंपेयर एंड कंट्रास्ट describe the topic then define the terms evaluate the cause and reason then analyze the topic and examine the effect and consequence that's all for today. I hope you have enjoyed and you have learned a lot about paragraph. Yes or no? Thank you for watching. Bye bye. See you in the live class on Sunday at 11 o'clock. Thank you for watching.